Jai Hind. We are on the platform of I Am Still Human, and there was a big demand, big request that we wanted to request Professor Tiwari. Professor Arun Tiwari is I would say he's a scientist, author, and top-end spiritual person. And he's done an immense research on the topic of Lord Krishna. It's Viewers will be glad to know that he had analyzed 25 books before he wrote the modern interpretation of Lokmanya Tilak's Gita Rahasya. And the topic for today's discussion is Lord Krishna, youth, and India. I think how to bring all of them into the center stage of learning. Sir, on behalf of the entire I Am Still Human, I welcome Professor Arun Tiwari for this discussion today. Time to you, sir. Thank you very much, General Saab, and Jai Hind. It is a great honor and privilege to always talk to you. It filled me with a lot of positive energy, and I am indeed thankful to you and the medium for giving me this opportunity. As you very rightly said in the introduction, that Lord Krishna is not some distant God, some seventh heaven. He is watching and waiting for you to come, and then he will give a judgment. He is a very active God. He is with you. He is inside you. He is attending to all your dilemmas, all your problems, and just a call away to help you out. He is a great cleaner of doubts. So, another important aspect of Lord Krishna is that he is a perfect personality. He is a child, he is a lover, he is a soldier. And one Sarup is he is having a flute, he is with a cow, he is with gopis, but he is also having Sudarshan Chakra. He can annihilate everybody, any demon, any evil force on earth. So, whatever a human mind can imagine about God, the summation of all that is Lord Krishna. This is how Sir, so beautifully covered, sir. My request, sir, let's do it 80% Hindi and 20% English, sir. Because most of our subscribers, they have requested that if the majority of the medium is Hindi, it'll be great, sir. Sir, so beautifully you have defined Lord Krishna as a god. To me, he's a full spectrum god. On one side is a Krishna Leela, sir. On one side is a gopi, in between is a flute. There is the story of butter, there is the story of Sudama, and like what you said, Sudarshan Chakra. What a complete god, sir. He's a full package. And in fact, he's my icon, sir. I see him in every aspect of life, whether it's a game, it's a military thinking, it's a strategic thinking, it's a tactical thing. In everything, he fits in so beautifully. And that's why, sir, the youth of today, especially during the COVID time, when they are doing the introspection, they really want to understand him. So, first question to you from their behalf is he is the person who's always talked about your duty, your karam, your action. And he said, don't worry about results, effect, and success. They will come automatically. He is the one person, like Newton said, action and reaction. But here, Lord Krishna so beautifully says, karam karo, baki fikr mat karo. In fact, can you tell us on this aspect of karam and action? And that's the beauty of his teachings. This is a very important point, General Saab, you have raised. See, I had the good fortune of going to Golden Temple along with President Kalam. That was the finest moment of my life. Pleasure. And there, somebody told me
that it is written in Guru Granth Sahib that Ek Krishnam Sarab Deva Dev Devata Atma. So, what does it mean? Why our Gurus have written in Granth Sahib, Deva Deva Ta Atma. Atma is inside. So, He is one God who is with you always. There is nothing to approach. You can be blind to Him, you can be deaf and dumb to Him, but He is very much there for you. So, now the point comes that how do we aware of God within us? And if He is a Sarabdeva, that means if He is God of mine, He is God of you also. And He is God of everybody around us. So that means it is a consciousness system. It is, it is energy. And it is up to us to take the help of that energy or stay cut off from that energy. That is the only option we are having. So I am having a television set in my house, but I do not switch it on, or I always watch some comedy show. I do not tune it to the correct channel. So that is the only problem. So God is very much there, watching, looking at, waiting when this fellow, and why waiting? Why he is not? Because in Bhagavad Gita, Lord Krishna very clearly told Arjun, buddy, I have told you Bhakti Marg, I have told you Karma Yoga, I have told you Sannyas Yoga. Whatever path you take, you can reach me. But it is up to you. Now, Janan Sahib, it is up to you. No religion on earth will give this freedom to the follower of that religion. It is up to you. It is only in the great Indian religions that up to you has been provided. So, in fact, to me, Lord Krishna, he's a all-around personality. He's covers all spectrum. जैसे हम कह रहे थे कि बांसुरी भी उनका प्रॉप था सर, उनका कृष्ण लीला भी एक क्रिया थी और उनका सुदर्शन चक्र भी एक हथियार था. इनफैक्ट जिस प्रकार आपने कहा कि एक सर्व देवा का स्वरूप था, मैं तो कहूंगा वो एक सर्व पर्सनालिटी थी. देखिए, जी. ये पूरे इंडियन यूथ के दिमाग में ये होता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑल राउंड पर्सनालिटी. You don't want to be only a reader. You don't want to be only a sportsman. You don't want to be only a serious person. You want to have an all-round personality of life, you know. You want to enjoy the entire spectrum of life. So how does a youth learn lesson from Lord Krishna on this all-round personality? जनरल साहब, अगर आप भगवान कृष्ण के अलग अलग मंदिर देखें, तो मैं केरला में गया था, गुरुवायूर मंदिर, तो वहां एक छोटा सा बच्चा चतुर्भुज में खड़ा है. तो मैं बोला, ये छोटा सा बच्चा चतुर्भुज में खड़ा है, ये कौन सा रूप है? तो मुझे बताया गया कि आने से पहले 12 बजे आए थे रात को भगवान, तो अपनी माँ को उन्होंने सपने में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया. तेरा बच्चा बन के आ रहा हूं, मगर मैं बच्चा नहीं हूं, मैं मालिक हूं, तो तू टेंशन मत लेना, जो जो लीला होगी टेंशन मत लेना. वो बताने के लिए वो चतुर्भुज दिखाया उन्होंने. तो वो जो बच्चे की एक चतुर्भुज की मूर्ति है, वो गुरुवायूर में है. उसके बाद माखन खाते समय है, चोर भी हैं साहब, और गोपियों के साथ रासलीला भी करते हैं, और गोवर्धन पर्वत उठा के खड़े हैं, शेषनाग को मार रहे हैं. कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान ने करके नहीं दिखाई. तो एक जगह जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पूछते हैं कि भगवान आपको कैसे देखूं मैं, तो कृष्ण जी एक 12-13 श्लोक में बताते हैं कि अगर तुझे मुझे देखना है तो तू एक्सीलेंस को देख. मैं पहाड़ों में मेरू हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पशुओं में ऐरावत हूं, मैं सिंह हूं. जहां भी एक्सीलेंस और परफेक्शन है, वो मैं ही तो हूं भैया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो पूरा भगवान ने बिसात बनाई हुई है
जो चेस का बोर्ड रखा हुआ है, किसी को हाथी बना के खड़ा किया है, किसी को प्यादा बना के खड़ा किया है, कोई काले पे है, कोई सफेद पे है। तो सर इस गेम को ही तो खेलना है। अब इस गेम के अंदर मेरी क्या चाल है, उसके अलावा मुझे पूरे गेम के बारे में तो मालूम नहीं है। तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि बॉस तू इस चाल के ऊपर ध्यान लगा, क्या होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे। ये मेरी बिछाई हुई माला है, पूरी बिसात है, मेरे को मालूम है क्या होना है, तू उसकी टेंशन मत ले, क्योंकि वो तेरी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस दिन, आज के दिन, इस समय जो कमांड मेरे को मिली है, जो फर्ज मेरा है, जो ड्यूटी मेरी है, बस उसको पूरा करना है सर। सर आप जब सिपाही को कमांड देते हैं गो एंड शूट, वो उस समय ये नहीं पूछता सर कि सर मैं मर गया तो क्या होगा। ये उसका टाइम थोड़ी है, ये तो कमांड है, कमांड को मानना है। तो जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरी एजुकेशन है, अब अर्जुन जो था वो बड़ा धनुर्धारी था, क्षत्रिय था, राजा था। अब वो लड़ने का समय आया तो कह रहा है जी वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको कैसे मारूं। अब ये क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भैया ये तुम जो हो और इस समय जो तुम्हें करना है, अगर तुम उससे भागोगे तो इससे बड़ा मानव जीवन का जो वेस्टेज है वो नहीं हो सकता। तो ये गीता का रहस्य है सर। सर, ये आपने बहुत सुंदर पॉइंट बोला अर्जुन के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू मैनेज द डाउटर्स। ये जो लोग होते हैं जिसको शक, शंका, सवाल, हर वक्त शक और शंका ही होती है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इस लद्दाख के अंदर में चाइना के साथ में चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन कितने लोग हैं वो अपने शक और सवाल ही खड़े करते रहते हैं। और हर एक इंसान के दिमाग में होता है शक, शंका, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए कि किस प्रकार जो अर्जुन ने इतने बड़े बड़े सवाल किए, एक सवाल नहीं कितने सवाल किए, ताकि वो लड़ाई ना लड़े। बुद्ध मेरा चाचा है, मेरे रिलेटिव है, ये है, वो है। ये जो डाउटर्स हैं, ये जो लोग होते हैं जिनको शक और शंका रहती है हर वक्त, इसका किस प्रकार से कृष्ण जी ने एक लेसन दिया है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। जनरल साहब ये जो आपने सवाल पूछा है, ये एक्चुअली जो रूट सवाल यही है, ये मूल सवाल है इस पूरे दुनिया का। एक्चुअली हमारे यहाँ जो अंदर, हमारे हर इंसान के अंदर ये डुअल अथॉरिटी सिस्टम है। एक तो आत्मा है। अब आत्मा तो इटर्नल है, अजर है, अमर है, हमेशा सती, हमेशा रहेगी। और ये जो शरीर है ये हर समय चेंज होता है, जब से पैदा हुआ है तब से हर वक्त चेंज हो रहा है। अब नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। हालांकि लोगों को डर लगता है कि वो आ रहा है, लेकिन वो तो आ रहा है, वो जा नहीं रहा है, वो आ रहा है। तो हर हर पल हम चेंज हो रहे हैं। तो एक तरफ ये हर पल चेंज होने वाला सिस्टम है, और एक तरफ वो सिस्टम है जो अनंत काल से है, वो कभी चेंज ही नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में दो कमांड हो गई। एक कमांड वो जो वो देता है, दूसरी कमांड वो जो ये चेंज होने वाला देता है। तो ये पहचानना कि किसकी कमांड माननी है, यही सारा सार है। और इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ये वही आपको कमांड दे सकता है जिसको ये राज मालूम है कि तुम्हारी असलियत वो कमांड है, ये कमांड नहीं है। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि गुरु के पास जाओ और अपनी ईगो निकाल के। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो चप्पल बाहर निकाल देते हैं, तो वो चप्पल क्या है, हमारी ईगो है, वो उसको बाहर रख दो पहले तो, और उसके बाद गुरु के सामने अपना माथा टेक दो। बस वो जो आशीर्वाद मिलता है उससे पूरी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये जो क्लीनिंग है इससे बहुत फायदा मिलता है कि जैसे एक लालटेन के अंदर लौ जली हुई है, चिमनी के ऊपर कालिख लगी हुई है, शीशा टूटा हुआ है, तो वो चिमनी अगर हम साफ करेंगे तो अंदर से, हमारे अंदर से जो रूह का जो जलवा है वो पूरा सब दिखने लगेगा सर। सर, आपने बहुत सुंदर से कहा कि गुरु एक सोल्यूशन दे सकता है। दूसरा, आपने इससे पहले कहा था कि किसी सोल्जर को, स्पेशली भारतीय सोल्जर को, कोई
हुक्म दिया जाता है तो वो नहीं पूछता है कि क्या टास्क है, क्या है, वो सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर में अपना टास्क पूरा करता है। जी और एक तीसरी बात आपने कहा है ईगो की बात, मैं तो जब ये वर्ड है ना जो ईगो, मैं जब जी इस पे देखता हूँ तो मेरे को गो समझ में पहले आता है कि पहले गो होना चाहिए, ईगो का गो होना चाहिए। जी जी अच्छा, जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, जी कि देखिए जो कृष्ण जी ने एक उदाहरण दिया है फ्रेंडशिप का, दोस्ती जी का, जी जो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती थी। जी देखिए बचपन में वो इकट्ठे थे, बाद में वो मिले, सुदामा जी तो गरीब थे और कृष्ण जी तो राजा बन गए थे। लेकिन जी जिस प्रकार वो अपने थ्रोन से उठ के आए और उन्हें किस चीज की परवाह नहीं की, जिस प्रकार आके उन्होंने उनको गले लगाया, उनके एक जो चने गिफ्ट लेके आए थे उसको इतना प्यार से स्वीकार किया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आज आप आज की दुनिया में देखते हैं तो जो लोग हैं आमतौर पर जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो अगर आप उनको मिलो, जहां आप उनको फोन भी करो, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ बता क्या बात है, क्या चाहिए तेरे को, क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको इतना ह्यूमिलेट कर देते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि आप सोचते हैं कि ये जो कृष्ण जी का उदाहरण है ये कहाँ चला गया। ये जो आज जी के बाल कृष्ण हैं, मतलब उनको बताइए कि किस प्रकार से फ्रेंडशिप को मेंटेन करना चाहिए। वो एग्जाम्पल जो कृष्णा और सुदामा का हमको इतना सुंदर तरीके से दिया है। जी सर, इसमें एक भगवत गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैंने ये जो प्रकृति बनाई है और एक पुरुष है एक प्रकृति है, तो उस प्रकृति के उन्होंने 8 भाग बताए हैं। ये बात बहुत समझनी जरूरी है। उस 8 में 5 तो पंच तत्व हैं, तो पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि, वायु है, तो ये 5 तो पंच तत्व हैं। और 3 जो हैं उसमें वो बताते हैं कि वो एक तो बुद्धि है, एक मन है और एक अहंकार है। अहंकार इसलिए दिया है कि वो आपकी बाउंड्री लाइन है, क्योंकि ये पूरा चेतना का फील्ड है। तो उस फील्ड में अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो वो बाउंड्री है, तो आप दूसरों की बाउंड्री में उसको कंफ्यूज होते रहेंगे। लेकिन उस बाउंड्री को ही पूरा यूनिवर्स मान लेना, वो ईगो की प्रॉब्लम है। तो मेरा, मैं और मेरा, तो जिसके दिमाग में से ये मैं और मेरा वो जितनी जल्दी निकल जाए और उसका सर्किल इतना बड़ा हो जाए, अब जैसे मैं जनरल साहब से बात कर रहा हूं, तो आप मेरे दिल के इतने करीब हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कलाम साहब से बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी बातें होंगी उसमें एक अलग डेप्थ आएगी, उसके अंदर एक अलग वो आएगा। तो बच्चों को, जो हमारे यंग साथी हैं, उनको ये बताना है कि यार ये जो तुम्हारी ईगो है कि ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, सब तुम्हारे दोस्त हैं यार। इसमें एक बार दिल को खोलो, उसकी खिड़की खोलो, हवा आने दो थोड़ी सी। और थोड़ा धूल मच्छर भी आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हवा आने दो। ये जो खुला दिमाग और खुला दिल, ये रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता ही नहीं लग पाता कि कितना बड़ा दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, कितना बड़ा एम्पायर हमें मिला हुआ है, और हम अपनी छोटी सी एक उसमें कोने में बैठे हुए, यहाँ मेरे को मच्छर काट रहे हैं, यहाँ मेरे को चींटी काट रही है, यहाँ मेरे को तकलीफ हो रही है। अरे बाहर निकल यार, देख कितना मजा आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। ये अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने को सिकोड़ना, अपने को सिमेटना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनरल साहब। बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रोफेसर तिवारी जी आपने। मेरा अगला सवाल ये है, जब लॉर्ड कृष्णा को मैं अपने दिमाग में लाता हूँ तो दो चीज बहुत प्यारी आती है, एक तो गोपियां और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वोमेन और कृष्णा का रिलेशनशिप, ये गोपियां और कृष्ण का रिलेशनशिप, ये उनकी लीला और प्यार, ये एक बहुत पवित्र रिश्ता है। जी जी और ये हमारे सब यूथ को ये समझने की जरूरत है कि ये लव, ये लीला, ये प्यार कृष्ण की कृष्ण की जो लॉर्ड कृष्णा की जो उपदेश है इसके बारे में, और जो उन्होंने करके दिखाया, वो किस क्या सीखे आज का यूथ उस चीज से। सर, जो लॉर्ड कृष्णा का जो प्यार है, वो देने का है, वो लेने का नहीं है। सी, प्रॉब्लम क्या आती है
कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है, अगर आप किसी से प्यार है, तो आप उसको दो ना। आप उससे लेने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? माँ तो कभी बच्चे से कुछ नहीं मांगती, माँ तो हमेशा देने के लिए खड़ी होती है। तो ये जो रिवर्स लव जिसको हम बोलते हैं आजकल कि व्हाट इज देयर फॉर मी, तो ये तो प्यार नहीं है ना साहब। ये तो कुछ और ही है। इसको प्यार का नाम गलत दिया जाता है। तो भगवान का प्यार ये है कि वो देते हैं, और जो भी जिस तरह से, चाहे वो सुदामा हो या गोपी हो या कोई भी जो उनके पास आएगा, अर्जुन आया, दुर्योधन भी आया, लेकिन वो पैरों की तरफ खड़ा नहीं हुआ, वो सिर की तरफ खड़ा हुआ। क्योंकि वो अपनी ईगो लेके आया था, मांगने नहीं आया था, सिर झुका के नहीं आया था। तो जो प्यार से जो मांगे उसको दो और उसको जाने दो। ये जो पकड़ के रखना है ये प्यार नहीं है साहब, जाने देना है वो प्यार है। ये जो लेट गो की जो स्ट्रेंथ है वो प्यार है साहब। भगवान चले गए। एक लाइफ ऑफ पाई पिक्चर आई थी, तो पूरा वहां पूरी पिक्चर में शेर और वो बच्चा जो है वो नाव पे दोनों फंस गए हैं। लेकिन जब नाव किनारे पे लग जाती है और उसके बाद शेर जो है वो मैजेस्टिकली चलता हुआ जंगल के अंदर रुक जाता है, और बच्चा पीछे से बोलता रहता है एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो असली प्यार वो है जहां आप जो कुछ है वो देके और सीधे चले जाते हैं सर, पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपने बहुत सुंदर कहा है सर। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही कहते थे। उनकी जो गिनती थी सर, उनकी जी, गिनती एक से शुरू होती थी, एकम, मतलब कि वननेस ऑफ द एंटायर कॉस्मोस। और जी, गिनती चलते चलते जब 13 में आती थी, 13 मतलब सब कुछ 13, द सब कुछ। कंपैशन, द यूनिवर्सलिज्म। तो जब 13 की बात आ जाती तो अपने पास में आदमी कुछ नहीं रखता है, तो देने के लिए ही है, 13 ही है, सब कुछ तेरे 13 ही है, ये उनका उपदेश था। सर मैं जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बहुत ही कुछ एक खास मित्र हैं, उन्होंने कहा है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि मैं तो एक फौजी हूँ, कि एक लॉर्ड कृष्णा और वॉरफेयर के बारे में उनका क्या सोच विचार था। देखिए, जो महाभारत उन्होंने रचा था सर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर में उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के अंदर में उन्होंने बैटलफील्ड सजाया था, कुरुक्षेत्र के अंदर में जो दोनों फौजें तैयार की थी, कुरुक्षेत्र के में रहकर उन्होंने जो वॉरियर्स को बताया ये करो वो करो, और उन्होंने जिस प्रकार से इस लड़ाई का एक एंड शेपिंग की सर। देखिए, मैं आपसे एक बहुत, मैंने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, मैं आपसे ही कर रहा हूँ पहली बार जीवन में इसका जिक्र। मैं जब श्रीनगर कश्मीर में 15 कोर कमांड करने गया, तो मेरे को मालूम था कि मेरे आगे में कन्वेंशनल वॉरफेयर, एलसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म का बहुत बड़ा चुनौती है। तो मैंने काउंटर टेररिज्म के लिए अपने आप को भगवान कृष्ण के उपदेश के मुताबिक सोचा कि देखिए, मेरे सैनिक तो मेरे साथ में हैं, लेकिन जो मेरे दुश्मन है उसको भी मैं कैसे अपना ही बनाऊं। तो उसके लिए इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए साइबर स्पेस को डोमिनेट करना बहुत जरूरी है, उसके सोशल मीडिया को डोमिनेट करना जरूरी है। उसके अलावा कुछ एक ऐसे कदम किए कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी मोल्स भरे, मैंने अपने बंदे वहां भेजे, जो मेरे जी, दोस्त थे, जो खास दोस्त थे, जिनमें काबिलियत थी, उनको उसके अंदर में डाला, मोल्ड बनाकर, ताकि किसी भी एक्शन के अंदर में मतलब दोनों साइड की, चाहे वो कौरव हो पांडव, दोनों साइड की खबर किसी भी कमांडर के पास होनी चाहिए। हर एक कमांडर इसको सोचना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण से सीख कर किस प्रकार लड़ाई को दोनों एंड से कंट्रोल करूं। तो बहुत सफलता मिली और बहुत खुशी मिली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉर्ड कृष्णा ने वॉरफेयर के बारे में उनका क्या सोच विचार था। सी सबसे बड़ी बात जो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो वार है वो आखिरी सॉल्यूशन है, वो आखिरी आखिरी कोर्स ऑफ एक्शन है। भगवान शांति दूत बन के भी जाते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि 5 गांव दे दो, 5 पांडव है, 5 गांव दे दो। लेकिन जब दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और ऊपर से उनको वो बंदी बनाने की बात करता है, तब भी भगवान अपना रूप दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र दिखाते हैं उसको। तो अब जैसे एक में लाइव एग्जाम्पल है कि एक हमारा पड़ोसी है, अब वो
शंख बजा के नहीं, वो तो अंधेरे में आ गया और वहां डेरे वगैरह लगा दिए। तो हमारे बंधु ने कहा भाई ये क्या है। तो अब उसको बताना है कि देखो भाई ये तुम्हारी हैसियत है, ये हमारी हैसियत है, और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो शंख बजाने के बाद होगी, और उसके बाद फिर आर पार की लड़ाई होगी। ये चोरी छुपे रात को आ गए ये सब नहीं चलेगा। तो ये जो भगवान कृष्ण का है कि शंख बजा के लड़ाई शुरू होती है, और उसके बाद फिर अगर उसमें अभिमन्यु की भी आहुति देनी पड़े तो वो भी दी जाती है। भगवान ने रोकने की कोशिश नहीं करी उसको, वो होना है। क्योंकि अर्जुन के मन से ये जो मेरा है, ये कर्ण मेरा भाई है, ये मेरे भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य हैं, अरे देख तेरा बेटा किस तरह से इन सब लोगों ने उसको मिलकर मारा। तो वो लीला जो है उसकी, आखिरी डाउट भी उस बंदे के दिमाग से निकाल दिया कि जब तक इसके दिमाग में से ये लास्ट डाउट नहीं निकलेगा तब तक ये लीथल नहीं बनेगा। तो ये भगवान की लीला को समझना जरूरी है कि हर काम के लिए परफेक्ट होना है। चाकू अगर तेज नहीं है सर तो वो दाढ़ी अच्छी नहीं बनती है। अगर वो अगर सर्जन का स्कैल्पेल जो है वो ठीक नहीं है तो वो कट अच्छा नहीं लगता है। तो जो कुछ करना है परफेक्ट करना है, सही टाइम पे करना है, और करते समय ये नहीं सोचना है कि अब हो गया तो क्या होगा। वो करवाने वाला जो करवा रहा है इसी मन इसी पल के लिए, इसी क्षण के लिए मेरी सारी ट्रेनिंग हुई थी, मेरा सारा जिंदगी तैयार मुझे किया गया था, उस शिद्दत के साथ वो काम करना है। यही गीता का उद्देश्य है, और भगवान कहते हैं कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। बहुत तो बड़े सुंदर बड़े जो सर्जन होते हैं, जब वो हार्ट का ऊपर फाइनली जब वो बाईपास करते हैं, उस समय उनको हॉस्पिटल का बिल और ये सब ध्यान नहीं आता। वो तो खाली बस अपना काम करता है सर, जिसकी उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। जब सिपाही बंदूक चलाता है तब उसको कुछ नहीं याद आता, भारत माता की जय, अब उसके लगे या मेरे लगे ये ऊपर वाले के हाथ में है। ये जज्बा जो है ये गीता है, और ये गीता की कंट्री है, ये भगवान कृष्ण की कंट्री है सर। इसको कोई कोई भी दुनिया की ताकत इसको नहीं जीत सकती सर। ये हमारा भ्रम था, ये हमारी अज्ञानता थी कि बहुत तक हम सोते रहे, लेकिन अब हम जाग गए हैं। अब तो वेकअप हो गए सर, अभी अब उठ गए हम लोग। अब उठने के बाद दोबारा तो नहीं सोने वाले हैं सर, पूरा दिन पड़ा है, अभी काम करेंगे अच्छी तरह से सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा सर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ऑन द इश्यू ऑफ फोर्स मल्टीप्लिकेशन सर। जी पांडव 5 थे, उनके विरुद्ध 100 थे सर, और किस प्रकार से ये लड़ाई हुई हमने देखा सर, और क्या जीत जी हुई, सत्य की जीत हुई। हमारा भारत भी सदा यही कहता है सत्य में जायते। तो ये कृष्ण जी ने ये 5 जो पांडव थे इनका फोर्स मल्टीप्लिकेशन किया, उनकी जो शक्तियां थी एक एक के अंदर में, उसको किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया। मेरा क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन एंड फोर्स मल्टीप्लिकेशन जो 5 के एग्जाम्पल से दिया है महाभारत में, ये हमारा गीता में, जी इससे इसका आपका क्या विचार है सर, ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एक गूढ़ बात है। और जैसे हमारे यहाँ 5 पांडव थे तो 5 इंद्रियां हैं, आंख है, जीभ है, मैं छू सकता हूँ। तो ये क्या होता है कि कुछ लोग आजकल वो नर्ड बोलते हैं उनको, वो हम एक मोटा चश्मा लगा के कंप्यूटर के स्क्रीन में घुसे रहते हैं। तो सर वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, वो एक आंख और दिमाग में वो बस एक सेंस के ऊपर है। लेकिन उसको वर्जिश करने की भी जरूरत है, उसको हैंड के साथ भी काम करना है, उसको वाणी के साथ भी काम करना है, उसका गला भी साफ होना चाहिए, उसकी पांचों जो फैकल्टी है हमारी, उन पांचों फैकल्टी को एक्सरसाइज करनी है, यूज करना है सबको। तो ऑल राउंड हमको इंटेलिजेंस मिलती है। जैसा आपने भी बताया, पूरा एक कॉन्शियसनेस को 5 तरफ से फीड मिलती है। तो अगर आप एक चैनल के ऊपर अपना डिसीजन बेस करेंगे तो वो डिसीजन गलत होएगा। जब अस्पताल में हम मरीज बन के जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट भी नापा जाता है, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नापा जाता है, हमारे दिल की धड़कन स्पीड भी नापी जाती है, और हमारा टेम्परेचर भी नापा जाता है, और हमारी रेस्पिरेशन रेट भी नापी जाती है, और सबको रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये जो
उसके बाद जिसमें कमी है उसको सपोर्ट करना है। कहीं पर आंख है तो आप शार्प शूटर को भेजते हैं तो एक दूरबीन लगा देते हैं कि 1.5 किलोमीटर से आपको दिखेगा, वहां मारना है उसको। आप पास में भेजते हैं तो उसको आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देते हैं कि फेस टू फेस है, तेरे ना लग जाए कहीं। तो ये तभी कर सकते हैं जब आपकी सारी फैकल्टी की अवेयरनेस है, उनकी प्रिपेयर्डनेस है, और आप बिल्कुल तैयार हैं कि उनको इनपुट भी ले रहे हैं उनसे, और जहां जहां गैप है उसको आप मल्टीप्लाई और ऑगमेंटेशन भी उसका कर रहे हैं सर। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गीता से सबक सीखने की, जो हमारे अंदर है, हमारे जो दोनों कानों के बीच में 6 इंच है, जो हमारा मस्तक है, जो हमारी तीसरी आंख है, जो इंट्रोस्पेक्शन करने का एक तरीका है, जो अपनी सेल्फ वर्थ जानने का जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है सर कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है एक भारतीय होने के नाते, वो एक सोच और विचार की है। जिस प्रकार से चाइना ने एक चाइना प्रॉक्सी, चाइना प्रोपेगेंडा, जिस प्रकार पाकिस्तान एक लाए प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता रहता है, तो हर भारतीय को, स्पेशली यूथ को, किस प्रकार से एक इंट्रोस्पेक्शन, अपनी सेल्फ वर्थ और इनसाइड अपने अंदर देखने की जरूरत है। अपने अंदर जो एक आत्मा, चित्त और चेतना से जो सोच विचार आता है, जो वहां से उत्पन्न होता है, जो एक भारतीय का डीएनए और ब्लड के अंदर में है, उसको कैसे मिलन किया जाए? सर इसके लिए ये बात आपकी बिल्कुल सबसे बड़ा जो इस समय जो सोशल मीडिया और जो दुष्प्रचार चल रहा है, ये भ्रम फैला रहे हैं, ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं आपके दिमाग में कि जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उसका सबूत लाओ। तो ये जो डाउट क्रिएट करते हैं, अब कल को बोलेंगे कि आपका बाप कौन है, डीएनए करा के लाओ, तो ये क्या बात हुई? ये जो डाउट क्रिएट करना है, शेक्सपियर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जो डाउट है उसने उनको ट्रेटर बोला है। तो ट्रेटर क्यों बोला है उसने? कि ये गद्दार है। और गद्दार वो होता है जो आपके साथ होता है। गद्दार बाहर से नहीं आता, बाहर वाला दुश्मन होता है, अंदर वाला गद्दार होता है। और आप दुश्मन को तब तक नहीं हरा सकते तब तक आप अपने गद्दार को ठीक नहीं करेंगे। तो इस देश को पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लो, राजा जयचंद थे, मीर जाफर थे, कोई भी उनकी जात रहने दो, कोई भी उनका मजहब रहने दो, इस देश को हर मुकाम पर गद्दारों ने नीचा दिखाया है। और ये बच्चों को जरूरी है समझना कि एक भारत माता है, हम उसके बच्चे हैं, और ये जो हमारे गरीब हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, इन सब का हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। और जो हमारा सोल्जर सरहद पे गया हुआ है, वो अगर उसको कुछ हल्का पड़ गया, वो उसको बराबर सपोर्ट नहीं मिली, तो ये जो पूरा ड्रामा हमारा है, हम आप बात कर रहे हैं, घर में बैठे आराम से हैं, ये सब कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि जब तक जैसे ही कोई घर में आएगा, तो घर में आने के बाद सर घर की मर्यादा खत्म हो जाती है, घर की एक जो एक कंफर्ट लेवल है वो खत्म हो जाता है, हर चीज पराई हो जाती है। तो ये देश हमारा इतने साल से बचा के रखते हुए आए हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बरसो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो सर ये जो है, ये जज्बा लेके चलना है और डाउट नहीं करना है। ये डाउट जो है ये सबसे बड़े गद्दार हैं। योर योर डाउट्स आर योर बिगेस्ट ट्रेटर्स, शेक्सपियर ने ये लिख के गया है। तो ये जो भी कोई आपको ये भ्रम फैला रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है सर। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी प्रॉप्स हैं सर, जो भगवान कृष्ण जी के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे बांसुरी है, जैसे बटर है, जैसे मोर पंखी है, जैसे अम, अ, सुदर्शन चक्र हैं, जैसे उनका रंग नीला है, काला है, दो मदर्स हैं, तो ये इतना सुंदर प्रॉप्स हैं और इतना एक माइथोलॉजी है, तो सब एक्चुअल हिस्ट्री हुई है, एक्चुअली हुआ है। ये प्रॉप्स बड़े सुंदर हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर जो ब्यूटी है, सी ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने,
इसमें 3 देवियां बनाई हैं उसने, 3 माँ हैं हमारी। एक लक्ष्मी है, सरस्वती हैं और दुर्गा हैं। तो ये तीनों 3 माँ की जरूरत क्यों पड़ी? कि जो सर्वांगीण विकास होना है, जो आपका एक ह्यूमन बॉडी में जो परफेक्शन निकल के आना है। हमारे को बिस्मिल्लाह खां साहब भी चाहिए, हमारे को अब्दुल कलाम साहब भी चाहिए, हमारे को अब्दुल हमीद भी चाहिए। तीनों चाहिए हमारे को। हमारे को एक शहनाई बजाने वाला भारत रत्न बोलते हैं, हमारे मिसाइल साइंटिस्ट कलाम साहब को भारत रत्न बोलते हैं, हमारे अब्दुल हमीद साहब को परमवीर चक्र मिला है। तो ये जो हमारे कंट्री के अंदर, ये जो हमारी, ये हमारे जीन्स में है सर, कि हम पहचानते हैं कि ये अलग अलग शेड हैं। अब इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, तो सातों रंग को मिला के सफेद रंग बनता है। आप एक फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो शेड आ जाएगा। तो ये जो सतरंगी दुनिया है, ये सतरंगी दुनिया इसलिए बनाई गई है जिससे आपको ये पता लगे कि इन सातों रंग को मिलाने से ही सफेद रंग बनता है, जो परमात्मा है। तो ये जो विविधता है, तो वो भगवान समझाते हैं अपने व्यवहार से। वो जितने प्रेमी हैं, जितने दयालु हैं, जितने हर चीज है उनके अंदर, प्रेमी हैं, वो दयालु हैं, कवि हैं। लेकिन जब सुदर्शन चक्र भी धारी भी हैं, तो ये जो पूरा एक पर्सनैलिटी है, ये भगवान कृष्ण बताते हैं सर। बहुत सुंदर आपने बताया सर। मैं तो एक फौजी हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जी क्योंकि जन्माष्टमी बहुत उत्साह से मनाई जाती है फौज जी के अंदर में। जी और जो मेरी यूनिट में आसाम रेजिमेंट का हूँ, तो मेरी यूनिट के अंदर में सब धर्म के हैं, लेकिन मुख्यतः क्रिश्चियंस और हिंदूज हैं। जी तो मैं 2IC कर रहा था, मैं मेजर साहब था। तो हमने प्लान किया कि ब्रिगेड कमांडर साहब को बुलाएंगे जन्माष्टमी के लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और सभी पूरे जवान भी इंजॉय करेंगे, वील ऑल इंजॉय। तो बहुत प्लानिंग किया था उसके बारे में, बहुत सुंदर सजाया, सब कुछ किया। तो मैंने खुद एज ए 2IC पंडित जी को ब्रीफिंग दिया, और मैंने पंडित जी को बोला कि ठीक 12 बजे से 3 मिनट पहले मेरे साथ में नजर मिलाना, परमिशन ले लेना आप। ऐसा नहीं कि आप जल्दी कर दे, बाद में कर दे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे 12 बजे में बत्ती बंद होगी, एक ब्लास्ट होगा और कृष्ण जी का जन्म होगा, ऐसे करेंगे। तो पंडित जी ने ठीक 12 बजे से 3 मिनट पहले मेरी तरफ देखा, तो मैंने अपने सीओ साहब की तरफ देखा, ऐसे भाई परमिशन कर दें ऐसे करके। तो सीओ साहब ने सुविधा मेजर की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, और मेरी तरफ उन्होंने बोला ऐसे कि हाँ कर दो। तो मैंने सुविधा मेजर को बोला कर दो, और सुविधा मेजर ने बोला पंडित को कर दो। तो ठीक 12 बजे, देखो जब तक परमिशन सीओ साहब की परमिशन नहीं है जी तब तक हम कर नहीं सकते हैं और बहुत मजा आता था। देखिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये 12 बजे ही क्यों जन्म हुआ? देखिए ये लॉर्ड जीसस, उनका भी 12 बजे में जन्म हुआ। आपको मालूम है कि जब रात को 12 बजे बजते थे मुगलों के टाइम में, तो जितने भी खालसा के जत्थे होते थे, जो सिख सोल्जर होते थे, वो लाहौर को अटैक करते थे। और उस वक्त अटैक इसलिए 12 बजे करते थे कि लास्ट वाली जो नमाज होती है और सुबह वाली नमाज, उसके बीच में पढ़ते हैं, तो दोनों खराब हो जाती थी। और उनको डर लगा रहता था कि अभी 12 बजे में अभी आएंगे, तो डरते ही रहते थे। मतलब रात को कोई भी रात हो 12 बजे, वो डरते रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात है 21 अक्टूबर 1897, 21 सिख सोल्जर, पुरानी 36 सिख रेजिमेंट जो सारागढ़ी में थी, ठीक दिन के 12 बजे में तकरीबन 12,000 कबालियों ने हमला किया उनके ऊपर में। और आई डोंट नो कितना, बट आई थिंक मोर देन अबाउट 1,000 or 2,000 कबालीस वर किल्ड। और जो 21 सोल्जर थे, दे ऑल, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और उनको सबको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो भी जो परमवीर चक्र के बराबर है, वो मिला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 12 ठीक 12 बजे रात को जन्म का, ये क्या है? ये मतलब विधि सर, और ये विधान जो क्या है? ये विधि और विधान। सर, ये जो मेरी जो छोटा सा एक नजरिया है, मैं इसको नहीं मैं बता सकता कि सर, एक इंतहा एक चीज होती है। एक 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 ऊंट बैठ जाता है, एक वो तिनका जिसके बाद ऊंट बैठ जाता है।
एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि उसके बाद ऊँट बैठ गया, द कैमल सैट डाउन। तो ये जो 12 बजे होते हैं, ये एक दौर का होता है कि ये अब ये खत्म हो गया, अब इसके बाद नया दिन शुरू होता है, बस इसके बाद नहीं। तो ये जो अब इसके बाद नहीं, अब वो 7 बच्चियों को मार दिया कंस ने, इसके बाद नहीं, अब मैं आ रहा हूँ। तो ये जो है 12 बजे का महत्व ये है कि इसके बाद नहीं, ये इंतहा हो गई है, अब नया दौर शुरू होता है और उस नए दौर के अंदर अब नई तरह से जो है बात चलेगी आगे। तो मेरे मन में 12 बजे का ये महत्व है सर, कि अब जो है वो पीएम खत्म हो गया, एएम शुरू होगा, एएम खत्म हो गया, पीएम शुरू होगा। ये है 12 बजे का मतलब सर। बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया। जी। सर, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारतीय यूथ के लिए सिर्फ 3 मैसेज दीजिए। जी। 3 मैसेज, वो मैसेज कि जो लॉर्ड कृष्णा ने, अगर समझिए कि लॉर्ड कृष्णा चाहते थे कि 3 उपदेश देने के लिए भारत के यूथ को, इस क्षण, इस पल, इस वक्त क्या होंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो जहाँ है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, वो उसकी मर्जी से है। पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी, जो भी मेरे सामने इस समय है, उस ड्यूटी को अटेंड करना है। आप हर समय चारों तरफ आप किसी भी समय देखिए, कोई ना कोई ड्यूटी होगी। आप बस में जा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है, एक बूढ़ी लेडी खड़ी हुई है, तो उसके लिए सीट छोड़नी है। बस यही काम करना है उस समय, और कोई बड़ा काम नहीं करना है। लेकिन अगर वो लेडी नहीं दिख रही है उसको और वो सीट पे बैठा हुआ है, तो वो फिर गॉड विल नॉट लाइक इट। और तीसरी बात क्या है सर, कि जो भी उस मोमेंट के ऊपर काम करना है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब छोड़ के पूरी शिद्दत के साथ पूरा मन भगवान में लगा के करना है सर। वो जो आप क्या बोलते हैं सर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोलना है, उस समय सोचना नहीं है कुछ, उस समय अपना सब कुछ दे देना है। मैं, मेरे पहले जो कुछ हुए, मेरे बाद जो कुछ होंगे, वो सब इस पल के ऊपर कुर्बान है। इस जज्बे के साथ जो कुछ करा जाएगा, वो भगवान कृष्ण ने बताया है सर। सर, आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है। जी। मैं आखिर में जो आई एम स्टिल ह्यूमन के जो फाउंडर हैं मिस्टर विवेक मेहरा, उनकी तरफ से और हमारे सब सब्सक्राइबर जो मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने इतने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण जी के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने कहा है इस क्षण के लिए, भारत के लिए और यूथ के लिए क्या महत्व है इस क्षण के ऊपर में, इसके बारे में इतना सुंदर से कहा। सर, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर आपने 25 किताबें लिखी हैं अपने आप से और 5 को ऑथर की हैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के साथ में। और आपने एक इंडिया 3.0 बुक लिखी है, बहुत ही सुंदर किताब है, स्ट्रेटेजिकल, ऑपरेशनल और बहुत पूरे भारत के लिए। और जो सबसे लेटेस्ट आपने एक किताब लिखी है, इंडिया वेक्स, जो एक आपने अमेरिकन के साथ में लिखी है, फिशर जी के साथ में। मैं चाहूंगा कि ये बहुत रिक्वेस्ट है हमारे सब सब्सक्राइबर से कि हम एक और सेशन आपके साथ में करें जिसके बारे में इंडिया वेक्स। और इस वक्त में इंडिया को वेक होने की बहुत जरूरत है। इस जी। वक्त जी। इंडिया को रीसेट होने की बहुत जरूरत है। जी। और आपने तो ये किताब इसी क्षण के लिए लिखी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लीज कुछ समय दें हमको, तो हम आपके साथ में एक और चैप्टर इसी सीरीज में करना चाहेंगे। तो I'll tie up and I would like to tell all subscribers that we will come out with a session on India Week, a beautiful book, and which has got solution as the parameter for today's requirement. Sir, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और anything you like to tell the subscribers? पहली बात तो ये जनरल साहब कि आप जो ये इतनी अच्छी बातें कह रहे हो कि मेरे ऊपर अभी यकीन नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है बहुत। जैसे एक फूल के ऊपर धूप पड़ जाए तो वो मुखरित हो जाता है। तो पहली बात तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जरा नवाजी का। दूसरी बात ये है कि जो किताबें होती हैं, ये मेरा जब कलाम साहब चले गए 2015 में, तो मैंने सोचा कि अब ये किताबें भी चली गई, क्योंकि हम तो उनसे पूछ के लिखते थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे मन में ये आया कि ये किताब लिखनी है, तो इंडिया वेक्स किताब आई।
और अब आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि एक किताब तो बिना आपके साथ लिखे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो हम जुड़े रहेंगे जनरल साहब, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी उम्मीद के साथ देखूँगा कि कब उस किताब के ऊपर आपसे बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर वेरी मच। आखिर में सर, इससे पहले कि जय हिंद बोलूं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ किताब। अ, सर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये जो सर काले रंग का पहाड़ है, ये सर इस समय का डाउट है, कोरोना है, क्या होगा, नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब काला है, ये वो है। और ये जो लाल है, वो ये है कि सब अच्छा होगा। और ये जो सूरज है बीच में, तो ये सवेरा हो रहा है। किसके रोके रुका है अंधेरा। तो डरने की बात नहीं है, सब ठीक होएगा सर। ये इस किताब का महत्व है सर। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक्स।